So in the last lecture, we just discussed the old definition of organic chemistry, that is the compounds which can be directly or indirectly obtained from living compounds, living organisms. And second thing, vital force theory, which will be discarded by Bohr's experiment, in which he prepared urea as a first organic compound. Then we define new definition of organic compound, in which we took the base as hydrocarbon and their derivative. Derivative means replacing hydrogen or doing something changes in the hydrocarbon. We can obtain many compounds in which nitrogen, other elements are present. So such elements are known as heteroatoms. Such element will be referred as heteroatoms. Other definition of organic compound, in which oxides of carbon, Cu and CO2, carbonates, bicarbonates, cyanides, carbides. Except this compound, generally covalent compounds of carbon are known as organic compound. And I gave you some reactions to learn also. Then we discussed why carbon forms huge number of compounds. Number is very high because of tetravalency, catenation, multiple bonding. Isomeric word formula will be same, but different compounds are possible. Then we discuss about tetravalency, sigma and pi. The basic fundamental of sigma and pi, the double bond contains one sigma and one pi, triple bond contains one sigma, two pi, like this. Catenation depends on valency. Valency is 4, so more number of bonds is possible for carbon. Bond strength is high for carbon. We discussed about the other elements also. Carbon has highest catenation property. Next, we discuss types of carbon and hydrogen. So I will start from here. Types of carbon and hydrogen. So this is, here we'll start. What is primary carbon? So carbon is only attached to only one carbon. Secondary carbon is attached to 2 carbon, and tertiary is attached to 3 carbon. Similarly, quaternary is not attached to 4 carbon. But super primary will be not attached to any carbon. Now, this is types of carbon. Then we'll move to types of hydrogen. Primary hydrogen. Can anyone define what is primary hydrogen? Hydrogen attached to primary carbon. No, very good. H atom attached to primary carbon. Very good. And atom attached to primary carbon. Similarly, secondary attached to 2 degree carbon, 3 degree attached to 3 degree carbon. Is it possible? 4 degree carbon is possible or not? No, sir. Because carbon is already bonded to 4 carbon, that is quaternary carbon. So there is no 4 degree hydrogen. Okay. Just you can continue with me. If something remaining, you can complete at home. If something left out. I'm giving question. Identify 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree carbon and 1 degree, 2 degree, 3 degree hydrogen in the following molecule. Also find number of 1 degree carbon, 2 degree carbon, 2 degree carbon, 4 degree carbon, 1 degree hydrogen, 2 degree hydrogen, 3 degree. Just mark, put an arrow and light 1 degree carbon, 2 degree carbon.
Try to do this. फिर ये डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है? डिग्री Just difference to show the difference, beta, nothing else. I should be differentiating the carbon. Na? One count as to 1 degree carbon. One carbon. We just named it as a 1 degree carbon. So what are the 1 degree carbon here? बताइए. ये होगा this one and this one. What is total number of 1 degree carbon? 5. 5. Total number of 1 degree carbon is 5. Total number of 2 degree carbon? 1. 1. 1. What is, where it is? This is 2 degree Yes. carbon. What is 3 degree carbon? This. No, what is this? 1. 4 degree. 1. Yes. So total number of 3 degree carbon should be what? 1. 1. Total number of 4 degree carbon should be also what? 1. 1. Similarly, total number of 1 degree hydrogen. Tell me. 15. 15. Very good. How did you calculate that? Because Sir, if 5 one- into 3 by 3. because one degree carbon contains 3 1 degree hydrogen. So 5 into 3 equal to 15. 1 into 2. 2. 4 into 2. 1 into 1. Done, everyone? Hello? Yes, sir. Yes, now, sir. now try to understand this. तो से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको. How many, very crucial question, how many different types of carbon atoms are present in above molecule? In previous question, simple. Molecule given in previous question based on, देखिएगा क्वेश्चन चेंज किया मैंने स्लाइडली. डिफरेंस इन देयर कनेक्टिविटी. डिफरेंस इन देयर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेमिंग जो 1 डिग्री 2 डिग्री होता है. डिफरेंस इन देयर कनेक्टिविटी. बताइए Sir, only 1. कैसे बेटा? 5 तो होना ही चाहिए. 5 तो 1 डिग्री एंड 5 बोल रहा हूँ. 4 टाइप तो होना ही चाहिए. 1 2 3 4. फिर हाँ 4 टाइप 1 डिग्री 2 डिग्री 4 तो मिनिमम होना ही है. 1 डिग्री अलग है, 2 डिग्री अलग है, 3 डिग्री अलग है, 4 डिग्री अलग है. वो कनेक्टिविटी अलग है. पर मैंने यहाँ पे कुछ 1 डिग्री 2 डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करने के लिए कहा. हमने कहा कि बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर कनेक्टिविटी. हो सकता है 1 डिग्री भी डिफरेंट हो. Try to think and answer it. Very good question. On this basis, you will learn many things. Four. नहीं, 4 तो 4 हो सकता है. 4 can be answer. जरूरी नहीं है. Try to think. So 1. 1 कैसे बेटा? बेटा 1 Sir, डिग्री three. और रुको. अच्छा 1 किसने बताया? नाम बताइए. Bhavika. भाविका सुनो. 1 डिग्री 2 डिग्री डिफरेंट है कि नहीं बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर दिस. 1 डिग्री 2 डिग्री डिफरेंट है कि नहीं? हाँ sir.
क्लियर है? ऊपर हमारे पास देयर 1 डिग्री कार्बन भी है, 2 डिग्री कार्बन भी है, 3 डिग्री कार्बन भी है, 4 डिग्री कार्बन। तो ऑल 4 वैरायटी का प्रेजेंट हियर। मिनिमम तो 4 होना ही है ना? Are you Okay, getting sir. it? Minimum 4 Yeah, होना। yeah, sir. Try to give answer, गलत होने दीजिए। I will try to correct it, but try to attempt. But before answering the question, you must have the reason कि I'm going to say the answer. Do you have any reason or not? Please give a thought on that. Then try to give the answer. Anyone? Now I will tell you. First of all, how many 1 degree carbon are there? बताइए। 5. Sir, 5. 5 are there. Out of 5 carbon, 1 degree carbon, how many 1 degree carbon attached to 3 degree carbon? 1. 1. 1. कौन सी आंखों से देख रहे हैं आप? How many carbon 1 degree carbon attached to 3 degree carbon? Sir, 2. Sir, 2 carbon. फिर गलत कैसे कहा आपने? या तो हमारी क्वेश्चन पहुंची नहीं होगी, हो सकता है कनेक्टिविटी इशू के कारण। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन इज 2, है ना? कोई डाउट? No, sir. तो हम क्या करते हैं? Attached to 3 degree carbon. अच्छा, if I talk about this one and this one, both are attached to same carbon. Yes. Yes. It means their connectivity is not different. Understood? Yes. ठीक है. So we have to consider only one type. Now, if I consider this carbon, this 1 degree attached to which carbon? 4 degree carbon. They are 1 degree, but attached to what? 4 degree carbon. So are they different from the one which we discussed just now? Yes, sir. Yes. So 1 degree carbon attached to 4 degree carbon, and 1 degree carbon attached to 3 degree carbon, both are what? Different connectivity. So both will be considered as different. Now, what is the remaining 1 degree carbon? Attached to what? 2 degree 2 carbon. degree carbon. So I have 5 1 degree carbon. Out of 5 1 degree carbon, 2 are same attached to 3 degree, and 2 are same attached to what? 4 degree. So their type considered only 1. So how many 1 degree different carbon are there? 3. 3. 3. And how many 4 degrees there? 1. How many 3 degrees there? 1. Now how many 2 degrees there? 1. 1. This is for बताइए 2 degree, 4 degree. 3 degree और 4 degree. हाँ, टोटल कितने डिफरेंट हो गए? 6. 6. So we have 6 different carbon based on their connectivity. But if I ask you, tell me how many types of carbon based on the naming 1 degree, 2 degree, 3 degree, then it is only what? 4 types. All 4 types are present in this. But if they ask you how many different types of carbon is present, it is always 6 in this case. Now tell me total number of hydrogen, different hydrogens. बताओ total number of different hydrogen, बताइए कितने होंगे? Different. All 1 degree carbon containing hydrogen, so all will be considered, है ना? Hello? 2 Yes, degree sir. hydrogen, all 2 degree hydrogen will be similar. All 3 degree hydrogen will be also what? But 3 degree hydrogen has only 1 here because carbon is 1. Attachment of hydrogen also 1. So how many different types of hydrogen are there? 5. Are you getting it? Sir, but 1 degree Yes. carbon will have 3 hydrogens. But all are same type, no? Because the connectivity is same. Got it? Hello? 1 degree carbon has 3 hydrogen, but they are connected to the same carbon now. So they will be same only. Yes. ठीक है? Done? लिख लीजिए. If I want to draw the diagram of this, यहाँ पे diagram बना लेते हैं. So this difference is based on what?
Pure. So these two carbon are what? बोलिए. Same type. है ना? Yes, sir. This carbon and this carbon are Same. same type. And other is, this is different. This is different. This is different. As well as this. Again, I'm repeating the same type of question. How many? What is the use of this? You will soon realize how many different types of carbon and hydrogen are present in following molecule. Again, if nothing is mentioned, you have to consider what? Based on their connectivity. Based on their connectivity. This called religion. लिखते जाइएगा, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए. मैं नोट पे कुछ पॉइंट लिख देता हूँ. 1 degree carbon, 2 degree carbon, 3 degree carbon, and 4 degree carbon are definitely different. But to 1 degree carbon, to 2 degree carbon, or to 3 degree carbon, or to 4 degree carbon can also be different if their connectivity is what? Different. बताइए फर्स्ट में कितना डिफरेंट कार्बन है? 5. Total number of different carbon. 4 sir. Sir 4. Total different hydrogen. तो नाम कैसे याद होगा? आज के क्लास में मैं सिर्फ स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 नेम पूछता हूँ, ठीक है ना? आकांक्षा देयर? आकांक्षा? Yes, sir. बेटा आप लास्ट क्लास में भी कुछ नहीं बोल रहे थे. आपका नाम मैं Sir, I कितनी बार was not able to speak. एनी रीजन? No, तबीयत sir. तबीयत खराब थी या मतलब या माइक्रोफोन का इशू था? सर पता नहीं पर वो अनम्यूट ही नहीं हो रहा था इसलिए. अच्छा ठीक. आकांक्षा, अभेद, अभिजीत, अर्जुन और अथर्व. पहले इतना नाम याद, इसी नाम को मैं कॉल करूंगा, पूछूंगा इनसे. बताओ बेटा अभेद, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन. अभेद बोलो. सबसे पहले मार्क कर लेते हैं. अभिजीत, अभिजीत है? 1 degree कार्बन, ये सब सारे हैं. अभिजीत, आर यू देयर? If I call someone's name, please respond quickly. Yes, sir. Why you are not responding? I called your name twice. बेटा प्लीज बोलिए अगर आपके पास आवाज पहुंचती है तो. ये 3 degree कार्बन. Now
Can you tell me which two 1 degree are same? Which two 1 degree are same? In this 1 degree carbon are same. Sir, CH3 and CH3. There are 3 CH3. If I divide this molecule into 2 equal parts, ये वाला इसके जैसा बिल्कुल है और ये वाला किसके जैसा है? इसके जैसा. जो Yes, टर्मिनल sir. वाले कार्बन है वो पूरा क्या है? सेम है. Yes, sir. It means for 2 CH3, for 2 1 degree, we can consider different. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. और ये वाला 1 degree क्या है? Different. It is attached to 3 degree. Yes, sir. So 1 plus 1 for 2 1 degree plus दोनों 2 degree क्या है? बिल्कुल सिमिलर है. Yes, sir. और 3 degree क्या है? एक ही है 3 degree, तो दिक्कत नहीं है. Yes, How sir. many it becomes 4. Yes, sir. और सभी पे जो हाइड्रोजन होंगे वो भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. 1 plus 1 ठीक है बेटा, म्यूट कर लीजिए बेटा. थैंक्स. Sir, हाँ बोलो. Oh, Sir, anyone, first- any other one can ask doubt बेटा. I just try to recall the name. That's why I just pick starting first name. Doubts कोई पूछ सकते हैं. हाँ बताइए. sir, जो फर्स्ट वाला 1 डिग्री कार्बन है हाँ वो 2 डिग्री को ज्वाइंट है. सेकंड वाला जो 1 डिग्री कार्बन है वो 3 डिग्री को ज्वाइंट है. so और that's why they're लास्ट different. वाला भी 2 डिग्री को ज्वाइंट है ना. सो हाँ, और last एक वाला- 1 आएगा ना. कैसे? लास्ट वाला जो 2 डिग्री से ज्वाइंट है और जो फर्स्ट वाला 2 डिग्री से ज्वाइंट है वो सिमेट्रिकल है ना. देखो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर यस. है ना. देखो कितना डिफरेंस हो गया. थोड़ा सा पढ़ा हमने, तुरंत डिफरेंस आ गया. हमेशा ऐसा डिफरेंस आता जाएगा. डन. बी में बताइए. सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर बी. नथिंग यू हैव टू रिमेंबर. आज के क्लास का सिर्फ लेसन आप इतना याद कर लेंगे कि इन अ मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन आर ड्यू टू डिफरेंस इन देयर कनेक्टिविटी. सिंपल. नॉट कि 1 डिग्री 2 डिग्री से डिफरेंट होता है. 2 1 डिग्री भी डिफरेंट हो सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन आल्सो मार्क बेटा. देखिए यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं. दिस इज फॉर अटैच टू 2 डिग्री एंड दिस इज फॉर अटैच टू 3 डिग्री. सेकंड का बताइए आंसर. कितना डिफरेंट है? Sir, 4. 4. 4. 4. क्यों? 2 1 डिग्री डिफरेंट है, एक 2 डिग्री डिफरेंट है और एक 3rd degree. 3 डिग्री डिफरेंट. 4. These two molecules are very very important. Later on I will again ask you a question. इस पे 3-4 बार क्वेश्चन आएंगे. यही 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल आपको याद हो जाएंगे. आइसोमेरिन पे ऊपर क्वेश्चन आते हैं. तो डिफरेंट हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? 4. 4. Only difference what is the difference between the above question? If quaternary carbon is there, so quaternary hydrogen is not there, then the number of different hydrogen will be lesser than the number of different carbon. But if there's no quaternary carbon in the hydrocarbon, then you will get same number of hydrogen. Done? ठीक है. मैंने यहाँ मेंशन किया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री and 4 डिग्री are definitely different. But 2 1 degree or 2 degree or 2 3 degree or 2 4 degree can be also different if the connectivity is what? Different. Similarly for same thing applied for what? हाइड्रोजन. Hydrogen. Done. हाँ भाभी का कुछ पूछना है? हाँ sir. Sir, can you explain once again the second sub question? हाँ हाँ. अच्छा एक बात करो, आप ही एक्सप्लेन करो बेटा, ट्राई करो. क्या दिक्कत है? ये 1 डिग्री है, बताते हैं Yes, ये sir. पार्टिसिपेंट 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री Yes. है. और ये Yes, जान sir. लीजिए सबको कि ये मत सोचिएगा कि कभी भी हम लोग मतलब अगर कुछ मिस किया और हम आएंगे और हमें समझ में आ जाए. माई क्लास विल बी ऑलवेज कनेक्टेड. इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऑलवेज. कभी कभार कुछ टॉपिक बिना भी हो सकता है कनेक्शन, लेकिन ट्राई टू ऑलवेज अटेंड द क्लास. कोई रीजन नहीं है. टू ज्वाइन द क्लास ओनली वन रीजन इज दैट हैव टू स्टडी. टू नॉट अटेंड द क्लास आई कैन मेक मेनी रीजन. सर मैं थोड़ा तबीयत खराब था, सर मैं थोड़ा ये था. नहीं, आई इन दिस सिनेरियो जो भी करंट सिचुएशन चल रही है बाहर की, कुछ भी हो सकता है. बट योर इंक्लिनेशन इज टू अटेंड द क्लास. तो कभी छोटी सी टॉपिक अभी हट जाएगी. अगर कोई मैं दूसरा चीज पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में इसी से कनेक्टेड, तो आपको नहीं बनेगी. फिर आपको लगेगा कि सर समझा तो रहे, समझ में नहीं आ रहा. तो इसलिए हर टॉपिक कनेक्टेड, क्लास कनेक्टेड है. यहाँ पे क्या लिख दें बताओ? 2 डिग्री
अब मुझे बताओ, this 1 degree and this 1 degree are same or different? Same. Same. So I have to consider one only. This 1 degree is what? Definitely different from the 1 degree Yes, attached yes. to 3 degree. So I have taken 2, and one for taken for 2 degree and one for taken 3 degree. That's it. Okay, thank you, sir. हाँ लिख लीजिए. Next देखना. If I remove one hydrogen from alkane, you can make a note of it. जो लिखते हैं. If I will make what alkyl. Alkyl. If I put plus 1 chlorine, तो क्या बन जाएगा बताइए. मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ फॉर्मूला. अल्केन का फॉर्मूला बताओ. H2n plus 2. और इसका CnH2n plus 1. और एक Cl ऐड कर दिया तो 10. Any doubt? No. No, sir. Same kind of example. If I take, let's take it on the other page. Now, just example. If I take CH4, क्या फॉर्म होगा बताओ. Methane. नहीं CH4 बेटा. If I remove one hydrogen, just take the example of above. One hydrogen, methyl plus 1 chlorine. I will get CH3 Cl. This step is known as mono substitution. What is the meaning of substitution? Replacement. What we did here, we replaced one hydrogen with what? Cl. And this compound will be referred as mono substituted product. Understood? I did what? I replaced the hydrogen with Cl. We call it mono substitution. And the product is known as what? Mono substituted product of iska CH4. CH4. Understood? What is CH3? Methyl. And how do we get the methyl? By removing? बताइए. One hydrogen Hydrogen. from One methyl. hydrogen. One hydrogen. One hydrogen. I took the second example. CH3 CH3. ठीक है. Again, if I remove one hydrogen, I will get which hydrogen I can remove. You will get the answer of which hydrogen you have to remove. Left one or right one? Right Right वाला. one. Right. तो लेफ्ट में क्या तकलीफ है? लेफ्ट को हटाएंगे तो ये मिलेगा. आर दे सेम और डिफरेंट? Same. Same. They are same. अच्छा, one more question. How many different carbon is there in this ethane? How many different carbon? No difference. Zero. So only one type, na? Different is not there. So how many carbon is there? Different type of connectivity check करेंगे. One. 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 How many different types of hydrogen is there? One. 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 How many product you got? Monosubstituted product. 3. One. ठीक है sir. One ना. Out of 6 hydrogen atom, all are same type. Because both the carbon is of same type. So all 6 hydrogen will be also what? Same type. Done? Now tell me for the third one. After doing your third one, you will realize what is the importance of the above discussion जो हमने ऊपर किया. How many types of carbon are there based on the connectivity? Sir, two. Two. 2. Confirm? Yes. What are those? Yes. 1 degree and 2 degree? Because 2 1 degree are same because they are attached to same carbon. But in future now you will realize here the difference becomes 5. बाद में पढ़ेंगे कभी. अभी फिलहाल 4 ही पढ़ते हैं. बाद में 5 पढ़ेंगे इस पर. तो क्योंकि मैंने कहा कि बार-बार एग्जांपल आएगा. Now if you remove one hydrogen atom, from where you can remove the hydrogen atom? Either the From terminal first Middle or left. second. first or third. First or third will give the same result. Yes. Yes, sir. This और मिडिल से निकाल सकते हैं this. मिल गए. इससे अगर आप बनाओगे अल्केन प्लस 1 Cl करोगे
you will get this. Acha, the compound form monosubstituted product is formed. Are they same or different? Sir, different. Different. Different because Cl attached to 1 degree carbon and the second one Cl attached to 2 degree carbon. Second. So even you can call it what? You can call it alkyl halide. Alkyl halide. We call it 1 degree alkyl halide. And we call it, boliye, 2 degree 2 alkyl degree degree alkyl alkyl halide. halide. alkyl halide. Now, how many alkyl you got? Bolo? 2. 2. How many monosubstituted product you got? 2. 2. How many different types of carbon you have? 2. 2. How many different types of hydrogen you have? 2. 2. 2. Which means, what is the result you can make it? बताइए. If we Total, have 2 Sir, different जितने types of different carbon, types of carbon. जितने different types of hydrogen होंगे, the total number of different hydrogen present in molecule, that will be just equal to total number of different alkyl possible from that molecule. yes. मतलब ये सब क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल होता है. That is also equal to total number of different mono substituted Product. products possible. वे जो products होंगे, they are structurally different. Structurally different. Structurally different का मतलब क्या हुआ? और different और having different connectivity of atoms. इसका मतलब ये हुआ. डिफरेंट की बात कर रहा है, समझ गए? जितने डिफरेंट हाइड्रोजन उतने ही डिफरेंट क्या, बताइए, अल्काइल. और जितने डिफरेंट अल्काइल बेटा उतने ही डिफरेंट क्या, मोनोसब्स्टिट्यूटेड Monosubstituted product. प्रोडक्ट. ठीक है, कोई डाउट? No, sir. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ, हाउ डिड यू गेट दिस वन? ये कैसे मिला? बाय रिमूविंग one degree hydrogen. How did you get this? By removing 1 2 degree hydrogen. 1 2 degree hydrogen. Clear है सबको? Yes, sir. You Yes, can make sir. box for this form. Result. लिख लीजिए अच्छे से, लिख लीजिए. ऊपर नोट कर लिया बेटा सबने? ऊपर नोट कर लिया? Sir, वो note बाकी Yes, है. sir. हाँ लिख लीजिए, लिखो. एक check the next example. I took fourth one you can take it and you make it. I will not say. In fourth one, or you can keep it as a homework. ठीक है ना? Can you finish it as a homework? Easy na? Yes, sir. Yes, sir. In the first part, how many different carbon is there? Sir, 2. 2. 2. The second one, 2.
2. Very Sir, good. 2, very good. Even can do this, है ना? Now question I'm giving you. Do this question. Why I'm mentioning structurally different? In future, you will learn two compounds having same structure. Still, they will be different. sir, 5. Hello. How many possible? Sir, 5. 5. 5. 5. Very good. 5 is possible. Can you draw all the structures? Yes, sir. Just do it. It is just for practice. Can you express all the structures in terms of bond line? Is it possible? Because I told you how to draw the bond line structure. Yes, So sir. let's draw with me the bond line structure. Since it is 5, that is for sure. It is 5. How to check? This is 1 degree. This is 1 degree. This is 1 degree. This is 2 degree carbon, 2 degree carbon, 3 degree carbon. So total number of different carbon. Total number of different carbon can write. How many 1 degree are different? 2. How many 2 degree are different? 1. 1 कैसे? Sorry, 2. 2. 2 ना बेटा, ठीक है 5. कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए, ट्राई करिए. अभेद हो रहा है. अभेद अभेद है. ठीक है. तो जब अगर आप बनाओगे तो किस किस जगह पे हम लोग लगा सकते हैं? व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स? First 1 degree carbon. Sir, तो first one. अच्छा, can I make the bond line? How many carbon are in state chain? 1 2 3 4 5. 5. Where this is the structure of that molecule given to you, है ना? Yes, So- sir. So from this I'm going to draw all the structures. Okay. Just put like this. क्योंकि कार्बन लिखना आपको आज लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट लिखना कितना बकवास काम था, है ना? देखिए कितना फास्ट है. बन गया है कि नहीं बेटा? हेलो, है ना? The question is monobrominated. So do we have to add bromine or chlorine? अच्छा, ब्रोमीन था क्या? माफ कीजिए. हाँ, sir. हाँ चलेगा ना, कोई दिक्कत. सेंस इज इम्पोर्टेंट. बी आर यहाँ पे क्या लग गया? बी आर, फिर बी आर, फिर बी आर. और how fast we draw? We have drawn all the structures. It is possible only because of what? Bond line structure. है कि नहीं बताइए? हाँ, sir. अभी कार्बन हाइड्रोजन बनाते होते तो कितना टाइम लगता? ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप. फर्स्ट है इसमें प्राइमरी अल्काइल ग्रुप.
इसको रेडिकल भी कहते हैं। वो चार्ज स्पीशीज वाला रेडिकल नहीं है, बस ये ऐसे रेडिकल है। इट्स नॉट चार्ज, नॉट चार्ज। व्हाट इज प्राइमरी अल्काइल ग्रुप? हाउ डू यू मेक इट? कैसे बनाओगे प्राइमरी अल्काइल? बोलो। From alkane. From alkane definitely will make it, but how will you make it primary alkyl from alkane? By removing one hydrogen. Be more specific. 1 degree hydrogen. 1 degree hydrogen. Because any hydrogen if you remove, that will not make it primary alkyl. If I talk about secondary, again primary bracket means 1 degree. Secondary 2 degree alkyl. What? 2 degree hydrogen. Tertiary dot dot. Again there is what? No No quaternary alkyl, alkyl. because there is no quaternary hydrogen. Done. Yes, sir. Now one by one, if I start CH3, CH3, same thing we'll just do it by removing one hydrogen. कौन सा? 1 degree. I will get CH3, CH2. What kind of alkyl it will be named as? Primary. Primary alkyl. Primary alkyl. Primary alkyl. ठीक है. Same thing if I do for propane. In the previous case, I'm not bothering about which type of carbon is there. If I remove one hydrogen, that is 1 degree, and the other hydrogen, that is 2 degree, I will get one is this. ठीक है? You can also write it like this. This. What is this alkyl? Primary alkyl. Primary. This is Secondary alkyl. Secondary alkyl. what is the name of that alkyl? सर समझा नहीं मेरे को, ये सेकंड डिग्री अल्काइल। किसने पूछा बेटा? हेलो. सर मैंने। हाँ विघ्नेश. It is what? 1 degree carbon. It has what? 1 degree hydrogen. It has what? 2 degree carbon. It has what? 2 degree hydrogen. If you remove 2 degree hydrogen, whatever alkyl you get, that is referred as what? Secondary alkyl. The name is given to that. And how do you form alkyl? By removing one hydrogen from what? Alkane. The name is accordingly given. Is clear? हाँ वो दूसरा जो स्ट्रक्चर में बोला थोड़ा डिफरेंट है, बट वही है। हाँ हाँ. इसका नाम बताइए क्या देंगे? We call it propyl or N-propyl. What is the name of this? इसको पता है? Isopropyl. Isopropyl. ये सब पता है? Isopropyl. Isopropyl common name है. It is common name still used in IUPAC. What is the other name? Short में IPR कर देते हैं, इसको NPR कर देते हैं. What is the other name? IUPAC name क्या है इसका?
ये नहीं पता आपको? पता है आपको? बताइए टू बताइए। प्रोपाइल। नहीं नहीं, हाँ नहीं पढ़ा होगा आपने, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे अब ये रूल्स बाद में हम डिटेल्स में लिखेंगे, बट क्यों ना एग्जांपल ड्रॉ किया तो हम लोग अभी सीख लेते हैं, क्योंकि हाई फाई कुछ है नहीं। From the carbon, locate the carbon from where the hydrogen is removed. Locate the carbon from where the hydrogen is removed. कौन सी पोजीशन है वो? सेकेंड। Sir, 2. तो यहाँ पे हम 1 मार्क कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 1 मार्क। और फिर उस पोजीशन से विल फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। लेफ्ट और राइट कहीं से भी जा सकते हैं। ट्राई टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। लेफ्ट जाएंगे तभी 2 कार्बन मिलेंगे, राइट जाएंगे तभी 2 कार्बन मिलेंगे। 2 कार्बन मिले? हेलो? यस सर। अच्छा, 2 कार्बन वाला अल्काइल कौन सा है? 2 कार्बन वाला अल्काइल कौन सा है? ऊपर लिखा है बेटा। इथाइल। मैं यहाँ नाम नहीं दिया, हमारी गलती है। क्या है इसका नाम? इथाइल। इथाइल। इथाइल 2 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले लिख देंगे हम इथाइल। इथाइल। अच्छा, तो जो हमने नेमिंग किया वो किस पार्ट का नेमिंग किया? सिर्फ इसका किया। एंड व्हाट इज लेफ्ट आउट अभी भी? बताइए क्या मिथाइल। left? मिथाइल। और मिथाइल किस पोजीशन पे है? लेफ्ट। नहीं, नंबर 3। 3 कैसे? 1 लिखा हुआ है आपके सामने है 2. फर्स्ट। बेटा। 1 नंबर। बताइए हमने क्या क्या पॉइंट फिर से रिकॉल करिए। लोकेट द कार्बन फ्रॉम वेयर द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, मार्क इट 1 फर्स्ट। शायद ये स्टेटमेंट देना मैंने भूल गया था। मार्क इट 1 फर्स्ट एंड देन फाइंड द लॉन्गेस्ट फ्रॉम देयर एंड नंबर इट। तो 1 2 नंबर कर दिया। 1 पे क्या प्रेजेंट है? बोलो 1 पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल प्रेजेंट है 1 पे। हाँ। इस पूरे ग्रुप का नाम हो गया 1 मिथाइल इथाइल। Again, I am repeating. You have to look, if you want to name the alkyl according to IUPAC, locate the position from where the hydrogen is removed, mark it 1 and try to find the longest chain from there. जितने भी कार्बन मिलेंगे अकॉर्डिंगली आप नाम लिख दीजिए पहले। So this is our base name according to the name. और 1 पे क्या लगा हुआ एक्स्ट्रा? मिथाइल लगा हुआ, उसको लिख दीजिए। So this is your IUPAC. Sir, I will again give you some example. Same thing will be applicable there. We'll try to use the same rule. So don't worry about it. हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे? सर एक बार वो बेस नेम आपने जो किया है हाँ, मिथाइल, मैं एक बार एग्जांपल, हाँ एग्जांपल एक देता हूँ बेटा, उसमें और समझ में आएगी। और एग्जांपल देते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3। How many different carbon are there? बताओ। सर 2। 2. If I remove 1 degree hydrogen and 2 degree hydrogen, we will obtain, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? What is this first? What type of this? What is this? प्राइमरी अल्काइल। Primary alkyl. ठीक है। And the second one you will get this one. सेकेंडरी अल्काइल। सेकेंडरी अल्काइल। We call it secondary alkyl. We call it secondary alkyl. Done. अच्छा, फर्स्ट का नाम सिंपल क्या होगा? Since you have removed the hydrogen from the end carbon, then it is a straight chain. Its name simple will be what? Butyl. ब्यूटाइल। और And butyl. N means क्या होता है? N का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन। That is enough. Now tell me, अब जैसे मैंने राइट में ये एग्जांपल समझाया आपको, लेट्स डू दिस एग्जांपल अगेन। इस एग्जांपल को फिर से करते हैं, तब देखो क्लैरिटी फट से आ जाएगी। एक बार नहीं समझ में आया, दूसरे में समझ में आएगा, दूसरे में नहीं समझ में आएगा, तीसरे में समझ में आएगा। आना तो है। लेट्स ट्राई टू नंबर इट फर्स्ट। व्हाट इज द पोजीशन वेयर द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड? सर 2। ना, जहाँ पे मार्क दिख रहा है बेटा, सिंपल वैसा बोल सकते हैं। तो क्या लिख दूं मैं? 1 लिख दिया। 1. ट्राई टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, लेफ्ट और राइट में। राइट जाऊंगा कितने कार्बन मिलेंगे? 2। और लेफ्ट जाऊंगा तो 3। कोई डाउट? कुणाल, कोई डाउट? नो सर, नो सर।
लिख दिया। अच्छा 3 कार्बन वाला अल्काइल कौन सा है? देखो Propyl. प्रोपाइल, तो पहले हम प्रोपाइल लिख देंगे। लिख दिया प्रोपाइल। अच्छा अब क्या बच गया बताओ, जिसको हमने कुछ नहीं किया? मिथाइल मिथाइल Methyl. मिथाइल बच गया। और किस पोजीशन पे बच गया वो? 1. 1। 1. समझ में आया बेटा? यस सर। डन हो गया एग्जाम्पल। तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल। सो 1 मिथाइल प्रोपाइल। सर हाँ बोलो। सर वो जो लास्ट में एक CH3 बच गया है वही हम लोग का जो 1 मिथाइल बचा है वो है। हाँ यस। तो जो हमने स्क्वायर बनाया है, जो रेक्टेंगल बॉक्स बनाई है, वो हो जाता है बेस, इसमें हमने नंबरिंग की है, और उस बेस के ऊपर क्या क्या चिपका हुआ है उसको हमने लिखा साइड में। दैट इज द वे टू राइट इट। डन। यस सर। नाउ यस सर। इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखना कितने इंफॉर्मेशन मिलते जा रहे हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल, ये कॉमन नेम है, एंड दिस इज नॉट यूज्ड इन आईपीएससी। सर आइसोब्यूटाइल भी बोल सकते हैं ना? क्या बेटा? नहीं नहीं बोलते। आएगा आएगा, सारे आएंगे, सब हो जाएगा डिस्कशन एग्जांपल ड्रॉ करने के साथ साथ। इसको आइसोब्यूटाइल नहीं बोल सकते, आपको फिर पता चलेगा आइसोब्यूटाइल बोलते किसको है। अच्छा कैन आई कॉल इट दिस, कैन आई कॉल दिस वन सेकेंडरी प्रोपाइल? लॉजिकली बोलना चाहिए। सेकेंडरी अल्काइल है Yes. वो, सेकेंडरी Yes. अल्काइल है वो, बट सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि आईयूपीएसी ने कहा, मेरा कोई रोल नहीं। बिकॉज कॉमन नेम इज गिवन जस्ट एज इट इज, किसी ने किसी को मूड किया उसने दे दिया, फिर हम लोगों ने इस पर पैटर्न ढूंढा कि इसमें बोलते हैं। तो रूल्स हमारे पास सिर्फ आईयूपीएससी के हैं। जैसे हमने रूल्स बताया आपको कि लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करते हैं, लोकेट करना, ये रूल्स है। पर ये आइसो, सेकेंडरी, नियो, ये सब क्या है? आर्बिट दिए हुए हैं, और कुछ कुछ एग्जांपल में पैटर्न ढूंढते हैं, तो उसको चेक कर लेते हैं। फिनिश इट टिल हियर। Yes sir. Next example I will take. Now in this case you have to make the IUPAC name. कर लेंगे आप लोग खुद से एक बार, सारे ड्रॉ Yes, sir. करिए, सब कुछ जितना ऊपर हमने बेटा किया वो सारे करिए। कैसा हाइड और रिमूव होगा सेकंड वाला? 3 डिग्री, 3 डिग्री होगा ना? Yes sir. ये कैसा अल्काइल होगा फर्स्ट वाला? Primary alkyl. Primary. प्राइमरी अल्काइल। और सेकंड वाला? Secondary. Sorry. Tertiary alkyl. टर्शियरी अल्काइल। Either you can write this, कैसा वो लिखो? You can write like this. 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 ठीक है। अब आप क्या करिए, फर्स्ट का आईयूपीएसी बनाइए खुद से, गलत होने दीजिए। कॉमन हम बताएंगे आपको, आईयूपीएसी बनाएंगे। But try to give a gap so that you can easily write. Two methyl propyl. सही है। देखो मैंने कोई ना रूल लिखवाया आपको, बस एग्जांपल कराए, रूल्स याद रहे, अप्लाई कर दिया, वेरी गुड। बट कॉमन नेम लिखने के लिए बोलूंगा, लिख पाओगे? किसी का भी बोलूंगा इसको कॉमन नेम लिखो, so there is no rules for common name. Only for few molecules there is a pattern, you have to just follow it and then you can write common name. So common name का कोई मतलब नहीं है।
4-5 एग्जांपल्स हैं, उसको कर लेनी है, अल्केन मल्काइल में हो जाता है। बिल्कुल सही है। सर हेलो, सर हाँ बोलो। सर वो 2 मिथाइल प्रोपाइल कैसा है, एक बार बताएंगे मुझे? नहीं, मैं साइड में नहीं बताऊंगा ना, तुम बताओगे, तुम ट्राई करो बाय ऑब्जर्विंग द सेकंड बोथ एग्जांपल्स। कोई दिक्कत नहीं बेटा, करो ना ट्राई, एक्सप्लेन तो करूंगा सारे एग्जांपल। आप परेशान मत होइए, क्लास में एक बहुत बड़ा रूल फॉलो कर लीजिए कि परेशान मत होइए, हमसे कुछ नहीं बन रहा है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट गिव अ अटेम्प्ट फर्स्ट। जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने समझा इसलिए बताया, तो आप समझेंगे तो डेफिनेटली बताएंगे। क्या बताया था दिशा, क्या बोले थे? 2 मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा, टफ था क्या बताना बनाना? नो सर। नहीं था। दिस इज आईयूपीएससी, तो आईयूपीएससी याद करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है आइसोब्यूटाइल, और आइसो कॉमन नेम है, और आइसो यूज्ड इन व्हाट? तो ये समझ में आ गया अभी तक कि आइसो यूज कर सकता है आईयूपीएससी में, बस सेकेंडरी वर्ड यूज नहीं कर सकता आईयूपीएससी। थर्ड का नाम बताइए। ऑल आर सेम, जैसे तरीके लिखने के अलग अलग है। 2 मिथाइल इथाइल। नहीं, गलत। 2 मिथाइल मिथाइल। गलत, ये गलत हो सकता है बिकॉज आपको रूल नहीं पता, तो आई कैन एडमिट की गलतियां हो सकती है, बट रूल विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर। तो लेट डिस्कस फर्स्ट द फर्स्ट वन। 1 इथाइल इथाइल। 1 इथाइल नहीं, बताता हूँ बेटा देखो, एक मिनट देखिए, यहाँ देखिए, पहले करते हैं कहाँ पे निकला बेटा हाइड्रोजन। इस किसको डाउट था, कौन पूछ रहे थे? हेलो कुणाल, हाँ। तो फर्स्ट 1 मार्क कर दिया हमने, 1 मार्क कर दिया, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करिए वहां से। कहाँ जाएंगे लॉन्गेस्ट चेन तक हम बिना इंटरप्शन के? 3 कार्बन मिला, अगर 3 कार्बन मिला तो 3 कार्बन के अल्काइल को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। वी हैव रिटन प्रोपाइल, बट व्हाट इज द एक्स्ट्रा वन? व्हाट इज द एक्स्ट्रा? सर CH3। CH3। अब किस पोजीशन पे बेटा है वो? सर सेकंड। तो लिख दिया 2 मिथाइल प्रोपाइल। अंडरस्टूड? यस। आसान था। नाउ टेक दिस एग्जांपल अगेन, ट्राई टू लोकेट द पोजीशन फर्स्ट जहां से निकला हाइड्रोजन, ये वाली है ना? यस। यस अब सर। लॉन्ग, अब तुम किधर जाओ, अपर जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, 2 ही कार्बन मिलेंगे, तो टेक एनीथिंग, सब सेम ही है। जब सब सेम है तो इसका नाम क्या होगा बताइए? इथाइल। Fine. इथाइल। 1 पे क्या है, अब एक्स्ट्रा कितने हैं बताइए? 2. 2। सर 2 2। है, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 मिथाइल, और क्या लिखना पड़ेगा फिर से? 1 मिथाइल। 1 मिथाइल। पर अब रिपीटेशन हो रही है सेम जगह के लिए, तो विल नॉट राइट लाइक दिस, विल राइट 1,1 1,1 और रिपीटेशन आई एम डूइंग, बट नंबर विल बी स्पेसिफाइड फॉर ऑल द सब्स्टिट्यूएंट। ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो दोनों के लिए जो नंबर है यू हैव टू स्पेसिफाई, एंड फॉर रिपीटेशन जस्ट यूज वर्ड डाइमिथाइल मिथाइल। So this is not true, this one is true. ऊपर वाला भी सही है, पर वो लेंथी हो जाएगा नाम ना। 1,1 डाइमिथाइल का मतलब क्या हुआ कि 1 पे एक मिथाइल है, 1 पे एक और मिथाइल है, तो that is clearing the statement. So you have to write like this. That is not wrong, but that is lengthy. So you have to write like this. आसान है? यस सर। यस सर। तो बेसिकली हमने 1 पे, देखो सिंपल सी बात है, 1 पे 2 मिथाइल एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो लिखना पड़ेगा 1 मिथाइल, बट what is the IUPAC organic compound? Basically it will tell you all the groups present in the name, in the molecule. अभी आपका हम नाम, जैसे मेरा नाम राजीव है, राजीव बोलने से ये समझ में नहीं आता कि मेरे पास हाथ है पैर है, बट अगर इनका नाम बोलने से समझ में आता है कि इनके पास क्या है, कि मिथाइल है, इथाइल है, किस पोजीशन पे है, किस कनेक्टिविटी पे है। तो IUPAC बेसिकली टेल्स यू व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, कनेक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, किस किस चीज में क्या क्या अटैच्ड है, तो इसका नाम क्लियर कर देगा कि इसमें क्या क्या अटैच्ड है। व्हाट इज IUPAC? आते हैं इस पे, क्या लिखते हैं इसका? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। डाइमिथाइल
इथाइल, ये क्या हो गया? IUPAC. Now we call it tertiary butyl और शॉर्ट में थर्ड ब्यूटाइल और TBU. ये सभी क्या है? कॉमन नेम है कॉमन नेम जो यूज किसमें नहीं करते, IUPAC. IUPAC. नॉट यूज इन IUPAC, पर कॉमन नेम है. तो दो क्लैरिटी मिल गई. सेकेंडरी और टर्शियरी हम लोग IUPAC में यूज नहीं करते, बट आइसो यूज करते. क्लियर है सबको? Now what is the name of this compound? Isobutane. अभी आप थोड़ा पैटर्न पे ध्यान देना. आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल, सब में आप गौर करना. देखिएगा सब लोग, ये मेरा चेन है, एंड पे कितने मिथाइल लगे हुए हैं? Sir, 2. 2. ये मेरा पार्ट है, एंड पे कितने लगे हुए हैं? 2. 2. मतलब एट द एंड ऑफ अनब्रांच कार्बन चेन अगर 2 मिथाइल लगे हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? आइसो. और क्लियर होगा. अभी एक और एग्जांपल लेंगे तो और क्लैरिटी आएगी कि मेरा एक चेन स्ट्रेट चेन है, सिर्फ एंड पे क्या हो गया? 2 मिथाइल लग गए. एंड पे क्या लग गए? 2 2 मिथाइल लग गए. आपका फिर से छोटा सा होमवर्क रहेगा और सारे एग्जाम्पल, छोटा होमवर्क क्या अभी फटाफट कर. इतने सारे हो गए लिख के सबका? यस सर. ओके, बढ़िया, फास्ट सब लोग कर रहे हैं. जो नहीं कर पाएंगे बताइएगा. टेक एग्जांपल N-pentane, CH3CH2, N-pentane. कितने डिफरेंट कार्बन? आप बताइए. अब तो आप बता सकते हैं कितने डिफरेंट कार्बन? Sir, 2. नहीं, 3. 4. गलत नहीं बेटा, थोड़ा सोचो ना, थोड़ा सोचो. गलती कैसे कर सकते हैं आप? गलती नहीं कर सकते. ओके, का नाम दे देते हैं. 3 बिल्कुल सही है. कैसे? कैसे बताइए? Sir, 2 CH3 and 2 CH3, CH2 2 CH2 was and saved, and the middle one CH2. Middle one CH2 is different than what? The other CH2. Why? The middle one CH2 attached to 2 degree carbon, but the other 2 degree carbon attached also what? With 1 degree carbon. So that's why how many different carbon is there? 3 different carbon. It means 3 different hydrogen. So how many alkyl you can form? देख रहे हैं कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है. आज पूरी क्लास बीत गई सिर्फ किस पे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पे. छोटी सी चीज पे इतनी इंपॉर्टेंस. बनाइए तीनों हाइड्रोजन बनाइए. सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाया तो चलेगा? नहीं, बॉन्ड लाइन बनाना थोड़ा अल्काइल का प्रॉब्लम बेटा, क्योंकि ऐसा बॉन्ड लाइन बनाओगे तो अब अल्काइल के लिए मुझे ऐसा डालना पड़ेगा ब्रैकेट कि वहां पे बॉन्ड पूरा नहीं हुआ है. समझ गए? यस सर. So that's why we should write. कोई गलत नहीं है, बट जस्ट राइट द हाइड्रोजन एंड कार्बन. ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा एग्जांपल करना है. अच्छा, इन दोनों क्या बोलेंगे बेटा? दिशा बोलो, इन दोनों क्या बोलेंगे? इसको और इसको क्या बोलेंगे आपस में? आइसोमर्स. Isomers, because their connectivity is what? Different. ठीक, आइए. कितने डिफरेंट कार्बन? क्विक. 4. 4. 4. एग्जाम्पल कर चुके हम लोग.
तो 4 डिफरेंट बनेंगे, सबके अल्काइल ड्रॉ करना है और सबकी नेमिंग भी करनी है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। सर हाँ बोलो। सर वो फर्स्ट वाले एग्जांपल में थर्ड डिफरेंट कौन सा है? फर्स्ट में हाँ सर, इसमें एक तो वो Yes. CH3 एंड ये दोनों सेम ही है, यस सर, फिर ये दोनों सेम है यस, और ये थर्ड वाला डिफरेंट है ना। ओके सर। हाँ फर्स्ट का नाम क्या होगा? पेंटाइल और एन पेंटाइल। एन N-pentyl. पेंटाइल। सेकंड वाले का नाम आईपीएसी बताइएगा। वन मिथाइल ब्यूटाइल। वन 1 मिथाइल methyl butyl. ब्यूटाइल। सब मजाक मजाक में सीख गया ना, आसान था। क्लास इज एनफ बेटा, जान कर रखिएगा। और घर पे सिर्फ एक बार उल्टाना है पेज को अपने, जो 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे आपको। सिर्फ क्लास के पहले सिंसियरली एक बार देख के बैठनी है और हर क्लास करनी है, ठीक है। इसका बताओ आईपीएसी क्या लिखे? वन वन मैंने नहीं मिथाइल बताया, ब्यूटाइल। मुझे डिस्कस करना ही नहीं पड़ा। ब्यूटाइल, दिस इज आईयूपीएसी। नाउ आई विल गिव यू इट्स कॉमन नेम सेकेंडरी पेंटाइल। अगेन क्या नहीं कर सकते इसको? नॉट Not used in नॉट यूज्ड इन IUPAC. आईयूपीएसी। आईयूपीएसी। थर्ड का बताओ, आईयूपीएसी बताइए। 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 ethyl propyl. मिथाइल प्रोपाइल। on ethyl propyl. This is IUPAC. And what will the common name? बोलो। सेकेंडरी Pentyl. सेकेंडरी पेंट। बट ये नहीं है, ठीक है। हाँ ये अलग बात है कि ये आपका प्राइमरी अल्काइल है, प्राइमरी अल्काइल है। ये वाला सेकेंडरी सेकेंडरी अल्काइल है, ये वाला सेकेंडरी और उसका नाम सेकेंडरी पेंटाइल नहीं है, समझ गए? Sir, can you please explain the IUPAC name of third secondary alkyl? I will not explain, you have to explain it. Sir, I got the answer as 1 methyl 2 ethyl propyl. कहाँ बेटा? थर्ड वाले का? हाँ। थर्ड वाले का, चलिए मार्क कर लेते हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं नहीं समझाऊं, उसको मतलब मत माने मैं नहीं समझाऊं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ट्राई करिए, ठीक है ना। 1 मार्क कर दिया हमने जहाँ पे हाइड्रोजन था। अब लॉन्गेस्ट फाइंड कर लो, दोनों तरफ सेम जाएगा। व्हाट इज नेम ऑफ दिस पार्ट? Propyl. बोलो। प्रोपाइल लिख दिया। Propyl. अब 1 पे पूरा ग्रुप क्या है? Ethyl. तो 1 इथाइल प्रोपाइल, Okay, sir. क्योंकि बेस ने बना लिया हमने, बेस के ऊपर क्या लगा होगा वो लगा दिया, ठीक है। और रुको, सब रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। सेकेंडरी पेंटाइल ऑब्जर्व करिए, सेकेंडरी पेंटाइल ऑब्जर्व करिए और सेकेंडरी ब्यूटाइल ऑब्जर्व करिए। दोनों में आपको क्या दिख रहा है? दोनों में आपको अलग क्या दिख रहा है कि जिस पोजीशन, डेफिनेटली कौन सी पोजीशन है? 2 डिग्री। ये भी कौन सी पोजीशन है? 2 डिग्री। और ये भी कौन सी पोजीशन है? 2 डिग्री। कोई डाउट है इसमें? No, sir. लेकिन एक को मैं सेकेंडरी पेंटाइल कह रहा हूँ, एक को सेकेंडरी पेंटाइल नहीं कह रहा हूँ, और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल था हमारे पास। तो लेट्स ऑब्जर्व इट। अब ये सेकेंडरी कॉमन नेम है, तो किसी को नींद में कुछ भी बोलने का मूड किया होगा, बोल जाओगे सिर्फ, चलो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल। अब बोल दिया तो चला आ रहे थे दोनों से, लेकिन हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल में आप देखिए, ये क्या दिख रहा है? एक स्ट्रेट चेन दिख रहा है, स्ट्रेट चेन है,
Yes. और सेकेंडरी कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल लगा हुआ है, दिख रहा है? हेलो, हाँ. ठीक है। अब फिर से देखिए सेकेंडरी पेंटाइल पे, सेकेंडरी पेंटाइल पे भी एक स्ट्रेट चेन दिख रहा है Yes. और एक मिथाइल लगा हुआ है। Yes. इसका मतलब सेकेंडरी वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं? नाम के साथ कब यूज करेंगे? जब एक स्ट्रेट चेन CH CH3 का फॉर्मेट हो। ऐसे फॉर्मेट होंगे उसको हम लोग सेकेंडरी Secondary pentyl. बोल सकते हैं। कोई रूल नहीं है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। 2-3 एग्जांपल ही जो याद कर ले, बट हमने ऑब्जर्व कर लिया तो बता दिया। बट इसमें देखिए एक तरफ इथाइल है, एक तरफ स्ट्रेट चेन मान लेते हैं, एक तरफ इथाइल है, तो ऐसे को हम लोग सेकेंडरी पेंटाइल नहीं बोलेंगे, अल्काइल जरूर बोलेंगे, टाइप ही सेकेंडरी अल्काइल, बट इट्स नॉट नेम इज व्हाट सेकेंडरी पेंटाइल। इसका नाम क्या होगा हमें भी नहीं पता, वी नॉट इंटरेस्टेड आल्सो, बट आईपीएस इज इंटरेस्टेड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर सेकेंडरी नेमिंग वन पार्ट शुड बी व्हाट straight chain alkyl and the other part is what methyl, and it must be what 2 degree carbon containing 1 hydrogen। ऐसे फॉर्मेट को हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी अल्काइल। क्लियर है? सर फिर Yes, लास्ट sir. वाला का कोई कॉमन नेम नहीं है? होगा कॉमन नेम, इंपॉर्टेंट नहीं होगा बेटा। देखो हमारी सिलेबस 11-12 ही है ना। अब अगर आप गौर करेंगे तो अल्केन पे एक बुक मिलती है, तो हमें अपने लिमिट के अंदर पढ़ना, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सेस है। हो सकता है कॉमन नेम हो, बट इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, समझ गए? तो हमने Yes, रूल्स क्या देखा? सेकेंडरी अल्काइल का एक स्ट्रेट चेन होना चाहिए, कार्बन पे एक मिथाइल होना चाहिए, बस। क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. yes sir. ओके, ट्राई टू फिनिश बेटा दिस वन। Done, sir. एक मिनट बेटा, कॉल करिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये आप कंप्लीट करना, ठीक है ना? मैं एक एग्जांपल और जो एग्जांपल है उसको कंप्लीट करता हूँ, हो जाएगा कंप्लीट। कंप्लीट तो हो जाएगा ना दिशा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Sir, हो गया complete. क्या तुम बहुत फास्ट लिखते हो? तुमने बॉन्ड बना लिया क्या ब्रैकेट डाल के? नहीं sir. अच्छा, कितने डिफरेंट कार्बन बताइए इसमें? 1 Sir, 2. 2. डिफरेंट कार्बन, ठीक है। और ये कौन सा अल्काइल होगा? कौन सा अल्काइल होगा बोलो? Primary alkyl. Primary alkyl. प्राइमरी अल्काइल। नेम बताइए इसका आईपीएससी का। स्टार्ट कहां से करनी है, क्या बताएंगे? 2 2,2 2,2 dimethyl 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 propyl. 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 इंपॉर्टेंट इज नॉट कि हमने आईपीएससी का रूल सब सीखा, इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बहुत कुछ बता सकता है। ये हो गया हमारा आईपीएससी। उसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटाइल, एंड कॉमन नेम इज यूज्ड इन व्हाट? आईपीएससी। Thank you. और मैं एक क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट वाला बना लेता हूँ, फर्स्ट वाला एक पैटर्न दिखा पाऊंगा मैं आपको। 10 ये डेफिनेटली प्राइमरी अल्काइल है। Yes. इसकी आईयूपीएसी बताइए। 2 methyl butyl. 3 methyl butyl. You have to start from numbering here.
So it should be 3-methyl butyl. And it is what? IUPAC. IUPAC. ये कॉमन नेम देखो लिखता हूं मैं, आइसोब्यूटाइल क्या है ये? कॉमन नेम and used can be used in what? IUPAC. IUPAC. Now try to observe, जाते हैं देखिए आइसो में क्या इंपॉर्टेंट है। आइसो में देखना आप, यहां तक स्ट्रेट चेन था, एंड पे क्या हो गया? ब्रांचिंग हो गई, हो गया ना? Yes sir. एंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल आ जाएंगे। सेम देखना यहाँ पे, यहाँ देखिए ये आपका स्ट्रेट चेन था यहाँ तक, एंड वाले पे कितने कार्बन मिथाइल आ गए? 2. तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ऑब्जर्विंग आइसोब्यूटाइल? स्ट्रेट चेन होगा और एंड पे क्या आएंगे? 2 methyl group. 2 मिथाइल। ठीक है, अंडरस्टूड? हेलो, Yes sir. यस सर। तो अगर आइसो ऑब्जर्व करना है तो स्ट्रेट चेन होगा और एंड पे 2 मिथाइल होंगे। अच्छा, नियो ऑब्जर्व करना होगा तो कैन यू मेक द रूल जस्ट लाइक आइसो? व्हाट यू हैव टू ऐड इट? बोलो। सर एक चेन और बीच वाले इस पे 2 मिथाइल होना चाहिए। 3 मिथाइल ना, स्ट्रेट चेन एंड एंड पे कितने मिथाइल? 3 मिथाइल। Yes. हाँ. तो फॉर आइसो व्हाट? 2 मिथाइल, स्ट्रेट चेन एंडिंग विद व्हाट? 2 मिथाइल, स्ट्रेट चेन एंडिंग विद व्हाट? 3 मिथाइल। So that is नियो। क्लियर है यहाँ तक? Yes Yes, sir. अब बताना मुझे, नियो अल्काइल जो नियो पेंटाइल लिखा है वो वर्ड प्राइमरी अल्काइल होगा या सेकेंडरी अल्काइल होगा? कुछ नहीं लिखा हुआ, पढ़ देना है, क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल। प्राइमरी अल्काइल। Primary Primary alkyl. आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल ना, दिस इज आइसोपेंटाइल, दिस इज आइसोपेंटाइल। अच्छा, और भी बनेंगे क्या इसमें? और तो नहीं बनेंगे? नहीं. नो सर। तो आइसोपेंटाइल भी क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल। यस। Yes. देखिए, देखते जाइए, आइसोब्यूटाइल भी क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल। Primary alkyl. लेकिन आइसोप्रोपाइल क्या होगा? सेकेंडरी अल्काइल। Secondary alkyl. डिफिकल्टी ऐसे बढ़ती है, इतने माइन्यूट चीजों पे ध्यान देने से डिफिकल्टी बढ़ती है। विच आइसो इज व्हाट? सेकेंडरी। तो क्या होगा? आइसोप्रोपाइल। ऑल द अदर आइसो इज व्हाट? प्राइमरी। डन? यस Yes सर। sir. ठीक है, ये सारे बेटा कंप्लीट करना, ठीक है? Yes हेलो, sir. यस सर। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे आप छोटा सा, थोड़ा कॉमन नेम भी होगा लेकिन वो अजीब सा नाम होगा। बट यहाँ तक आपको रिवाइज करनी है। फिर से कोई होमवर्क मिलेगा? कुणाल, कुछ ज्यादा होमवर्क है इसमें? यस सर। अरे ज्यादा होमवर्क है? नो सर। नहीं sir. अरे नहीं सर, होमवर्क मुझे लगा आपने पूछा होमवर्क है इसमें। नहीं नहीं, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट लगेंगे इसको। दिशा बोले मैंने कर भी लिया, कुछ नहीं होमवर्क मतलब। तो हमेशा क्लास के पहले देख के बैठनी है। जो पढ़ लिया हमें आता है, आपको हम पढ़ा सकते हैं। आई ओनली टेल द स्टूडेंट दिस, जो हमने पढ़ा है वो आपको हम पढ़ा सकते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, आपका टाइम ऑलमोस्ट हो गया। अब ऑलरेडी 3 o'clock से बैठे हैं पढ़ने के लिए। मेरा ही लास्ट क्लास मिला है पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो, ओके बेटा, थैंक्स, Thank you sir. थैंक यू सर। Good night. बाय।